Hello everyone. In this video we will discuss how to use Microsoft Forms in Microsoft Teams to create time-based test. So for that what you have to do is you have to open Microsoft Teams and then you have to click on assignments. After that you can choose the class for which you have to create the assignment. Say for example today I have to create assignment for grade 9th A. So I will click on grade 9th A and I will select next. Then what I have to do is I have to click on create and I will click on quiz. So since I want to create a new quiz, so I will click on new form. After that, you will see that your Microsoft Forms will open in Microsoft Office. अगर आपने login किया हुआ है, so automatically you will get that page. Otherwise, you have to they will ask for your login credentials and you have to put that in order to log in. उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू क्विज एंड टाइटल है सो टाइटल फॉर माय टेस्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर quiz number 2. Okay, so in the description you can add the description which is related to your quiz. Okay, so right now I am leaving that empty. Next part you have to do is you have to click on add new. ओके सो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे सो वी विल ट्राई टू टेक ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर फर्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक एज अ चॉइस बेस्ड सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ओनली वन ऑप्शन ठीक है सो फर्स्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the which of the following is not a compound and after that what I will do is I will I will type in the option number A. I will press enter तुरंत से हमें ऑप्शन नंबर 2 पे ले जाएगा एंटर प्रेस करने से अगेन आई विल प्रेस एंटर अगेन आई विल प्रेस एंटर ओके उसके बाद अगर आप देखेंगे देयर इज अ ऑप्शन हियर where you can see required is mentioned. So what I will do is I will click on this required because this question is compulsory for everyone. Okay, so you have to click on this required option and the point I want to allot for this question is 2. So say for example 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है मैंने बच्चे को 2 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दूंगा मैं okay so for this you can see this is a multiple choice question with only one option. Let's add the next question here. Again, choice based question. Question number second. So the question is which of the following can be separated by sublimation? Okay, so this is another question. So I will add in the option number 1. Again, I will press enter. Again, I will press enter. Again, I will press enter. Okay, but for this question what I want to do is I want to create a multiple choice question with multiple options. So for that what you have to do is ठीक है you will click on this multiple answers ठीक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये जो रेडियो बटन्स यहाँ पर थे ठीक है सो दिस रेडियो बटन विल चेंज इनटू द स्क्वायर शेप ठीक है इसको एक बार प्रीव्यू में जाके देख लेते हैं प्रीव्यू में if you click here you can either select iodine send but here what you can do is you can select multiple options. Okay, so I will go back again to the question and this is a multiple choice question with multiple options. Let's add the new question. I want to add text question and text question with a numerical value. So I want to add question convert
270 Kelvin to the okay, to the temperature in Celsius scale. So I want student to enter just value. So what I will do is ये जो three dots हैं यहाँ पर जाके I will basically add restrictions. Restriction में I just want them to add only number. तो number के ऊपर आप जाके click करेंगे and now if they type anything else, let's see in the preview. तो यहाँ पर सिर्फ number ही accept करेगा. Say for example I type 2, they will accept it. But if I type 2 like this, you will see you have to add a number. Okay, so this, if you want to add such restriction to your question, you can also do that. So there are many options to add restriction: number, greater than, equals to, not equals to, between, non between. Whatever restriction you want for your question, you can add that type of restriction. The next question I want to add is a text question with image. So let's add text question, and the question is, from the picture, name the process involved in drying wet cloths. Okay, and I want to add picture into that. तो picture add करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? We will click on this image. ठीक है? So image आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं. There is a Bing search bar here. You can either search from Bing और आप upload भी कर सकते हैं. Click on upload. So I have the image in my system. So I want to upload that image here. Okay, and then again I want to give 2 marks for this answer. So I added 4 questions. So let's preview all 4 questions. कैसे आपके quiz कैसे दिखाई दे रहा है? Okay, the first question says this one, and this is a multiple choice question with one option. ये multiple choice question है with multiple options, and again question with numerical value. Next one is question with the image involved. Okay, so our quiz is almost ready. I want to add only 4 questions for this quiz. ठीक है, बट इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि instead of I correct all the questions, so Microsoft Forms correct all the questions for me. ठीक है, Microsoft Forms ही सारे क्वेश्चन मेरे लिए करेक्ट करके दे दे. So for what I have to do the simple thing. For that thing, मेरे को जाके यहाँ पे हर क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है और उसमें एक राइट ऑप्शन ऐड करना है. से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है आयोडीन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है, आई विल क्लिक ऑन सेकंड क्वेश्चन, उसमें राइट आंसर से ऐड कर दूंगा कैम्फर एंड आयोडीन. ये तीनों राइट हैं, बाकी वाला रॉन्ग है. एंड थर्ड क्वेश्चन में आई विल ऐड द राइट वैल्यू. सो द करेक्ट आंसर इज 2. ठीक है, बट मेरे को लगता है कि कुछ बच्चे 2 लिखेंगे, कुछ बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू में 1.85 भी लिख सकते हैं. So my system will automatically accept both the answers. And next part is here I will write evaporation in the correct option. Okay, तो जैसे बच्चे evaporation लिखेंगे तो system will accept that. So now my 8 marks quiz is ready. एक बार इसको preview करके देखते हैं कि students की screen पे कैसा आएगा ये. So I will click on preview. ठीक है, स्टूडेंट की स्क्रीन पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद मल्टीपल ऑप्शंस विद ओनली वन ऑप्शन. सो यहाँ पे आई विल सेलेक्ट एनी रैंडम क्वेश्चन. सो से फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट सेंड. सेकंड वाले के क्वेश्चन में अगर मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन को क्लिक करता हूँ एंड हेयर ऑल्सो आई एड सम रॉन्ग वैल्यू एंड हेयर ऑल्सो आई टाइप सम रैंडम आंसर एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट. ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ से अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं. सो दे विल क्लिक ऑन रिजल्ट एंड दे विल गेट द इमीडिएट फीडबैक. ओके, सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर आयोडीन था एंड आई सिलेक्टेड सेंड. सेकंड का आंसर आई हैव टू सिलेक्ट अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और आयोडीन. तीनों सिलेक्ट करता तभी मेरे को 2 मार्क्स अवार्ड होते, बट मैंने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया इसलिए मेरे को मार्क्स अवार्ड नहीं हुए. थर्ड का आंसर था 2 और 1.85 बट मैंने 45 लिखा, दैट्स वाई माई आंसर वॉज रॉन्ग. एंड फोर्थ का आंसर था इवेपोरेशन बट मैंने GAC लिख दिया था, इसलिए मेरा आंसर गलत है. तो जैसे ही स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट करेगा स्टूडेंट को उसी समय इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाएगा. ठीक है, एंड उससे बच्चे का स्कोर भी उसको साथ के साथ पता लग जाएगा. पार्ट सेटिंग्स में देख लेते हैं व्हाट वी कैन डू विद द सेटिंग्स. So for settings you have to click on these 3 dots, your settings will appear.
फर्स्ट सेटिंग इज शो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। तो ये वाले ऑप्शन को आप तब सेलेक्ट करेंगे अगर आप बच्चों को इमीडिएट फीडबैक देना चाहते हैं टेस्ट के बाद। कई बार क्या होता है कि हमें बच्चों को फीडबैक इमीडिएट नहीं देना है। से फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट सेक्शंस के लिए सेम क्विज बनाया है, ठीक है। सो वी वांट कि जब सब सेक्शंस का हो जाए उसके बाद बच्चों को फीडबैक मिले। सो इन दैट केस आई विल टर्न इट ऑफ, बट फॉर दिस सेक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर क्विज आई वांट टू कीप इट ऑन। नेक्स्ट पार्ट इज हु कैन फिल दिस फॉर्म। अगर आप किस इस पे क्लिक करेंगे, सो एनीवन विद द लिंक, जब आप शेयरिंग का लिंक जिसको भी देंगे वो इस क्विज को कर पाएगा। बट फॉर टाइम बिंग आई वांट ओनली माय स्टूडेंट और द पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। So I will click on people in my organization can respond, and but if I click on record name, तो जो भी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे उनका नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। प्लस आई वांट वन रिस्पॉन्स पर स्टूडेंट, एक बच्चा सिर्फ एक ही बार इसको क्विज को अटेम्प्ट करेगा। नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्सेज, ठीक है। सो इफ आई क्लिक ऑन एक्सेप्ट रिस्पॉन्स, माई क्विज विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सेज। एंड हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट पे आप क्या कर सकते हैं, कई बार आपको क्विज लेना है 2 दिन बाद, ठीक है। आज आपका चैप्टर खत्म हुआ, आपको कल क्विज लेना है, परसों क्विज लेना है, तो आप वो वाली पर्टिकुलर डेट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल एंटर 29th, एंड टाइमिंग में आई विल एंटर, यू कैन से इफ़ यू वांट टू टेक क्विज ड्यूरिंग योर क्लास, ठीक है, या फिर आफ्टर योर क्लास, तो आप अकॉर्डिंगली उस टाइमिंग को ऐड कर सकते हैं। बट वट आई वॉन्ट इज कि बच्चे क्लास के बाद या इवनिंग में कभी भी इस फ्री होकर टेस्ट को कर सकते हैं। सो फॉर टाइम बिंग आई विल एंटर दिस 7:30, एंड एंड डेट विल बी द सेम 29th, और 8 o'clock तक हाफ एन आवर मैंने उनको दिया है, ठीक है, इस टेस्ट को करने के लिए। सो एक्चुअली यू कैन क्रिएट टू इंक्रीज द डिफ़िकल्टी। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं कि सिंस आई नो कि इस क्विज को करने के लिए दे विल टेक 1 minute 15 seconds, सो आई विल गिव देम ओनली 1 minute 30 seconds टू कंप्लीट दिस क्विज, ठीक है। उसमें ये भी पता लगेगा कौन सा बच्चा कितनी एक्यूरेसी से कितने कम टाइम में कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों बच्चों के 8 marks आए हैं, बट जो बच्चे ने जल्दी किया, सो दैट स्टूडेंट विल विन। Okay, you can adjust your ranks like that only, and this is just one of the options. It depends upon us how we want to use this option. Next important part here is shuffle questions, ठीक है। इस shuffle questions में क्या होगा कि रोल नंबर 1 के पास भी सेम पैटर्न जा रहा है, बट जब रोल नंबर 2 के पास जाएगा, क्वेश्चंस विल बी सेम बट दे विल गेट शफल्ड। सो आई विल क्लिक ऑन शफल क्वेश्चन। शफल क्वेश्चन में भी एक ऑप्शन है ऑल क्वेश्चन और लॉग क्वेश्चन। तो ऑल क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो हमेशा सारे क्वेश्चन शफल करेंगे। लॉग क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार किसी क्विज में फर्स्ट 2 parts आर बेसिकली वेयर स्टूडेंट राइट देयर नेम, देयर रोल नंबर और देयर सेक्शन। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लॉग क्वेश्चन में जाके वो कुछ क्वेश्चंस को लॉग भी कर सकते हैं। तो शफल तो करेगा बट वो वाले क्वेश्चंस को शफल नहीं करेगा। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ओनली, ओके। एंड लास्ट यू कैन सी द कस्टमाइज थैंक यू मैसेजेस। तो जब जो भी कस्टमाइज थैंक यू मैसेजेस है, बाय डिफॉल्ट आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज योर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड। In case you want to edit that message, you can also do that. Next part is send email receipt to respondent. So every time after the quiz I want कि सारे students के पास एक notification जाए, so I will check this box as well. Okay, so these are few settings which you can do in Microsoft Forms to make your quiz more interesting. The next important part is theme. So for themes, say for example, I take chemistry, so I usually choose this theme. This is my favorite theme. Okay, so I just choose this theme to make my form or my quiz more interesting. Next part is share. So in sharing you can see there are different options. First option is you can share either by creating link, ठीक है। आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा, और यू कैन ईदर डायरेक्टली कॉपी लिंक फ्रॉम हियर। नेक्स्ट पार्ट इज यू कैन जनरेट बार कोड एज वेल। आप बार कोड जनरेट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट विल स्कैन द बार कोड और वो डायरेक्टली क्विज वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज यू कैन सेंड देम ईमेल, ठीक है। यू कैन सेंड देम ईमेल। ईमेल से भी स्टूडेंट्स इसको जिसके पास ईमेल जाएगा, व्हेन दे ओपन द मेल देयर विल बी अ लिंक, they will click on that link and again they can attempt using that link, ठीक है।
बट अगर आपने टाइम बेस्ड ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखा है सेटिंग्स में जाके, तो ये तभी खुलेगा आपका क्विज जब आपका पर्टिकुलर टाइम, दैट मीन्स दिस माई क्विज विल ओपन ओनली एट 7:30 और 8 o'clock पे वो क्विज क्लोज हो जाएगा. एनी ऑप्शंस एज आई डिस्कस, तो आप लोग लिंक से भी शेयर कर सकते हैं, आप मेल भी भेज सकते हैं, आप बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं. पर the option which I like the most is I share all my quizzes with the help of Microsoft Teams. So Microsoft Team में शेयर करने के लिए again I will click on the assignments. मेरे को 9th A के साथ शेयर करना है. ओके, सो जो भी 9th A के साथ मेरे को शेयर करना है, अगेन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट में आई विल क्लिक ऑन क्विजेस. पहले मैंने नया क्विज बनाया था, अभी ऑलरेडी मेरे पास एक क्विज बन चुका है. आई वांट टू शेयर दिस टाइम, आई वांट टू शेयर स्टेट्स ऑफ मैटर क्विज नंबर 1 विद देम 9th A के साथ. So यहाँ पे again they will ask different question. The first question they will ask is you have to enter the instructions. आप instructions add कर सकते हैं. Yes, I want to share this with all the students of 9th A. अगर आप किसी एक दो बच्चे को असाइन करना चाहते हैं, आप वो भी यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को असाइन करना चाहते हैं वाला क्विज. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज यहाँ पर ड्यू डेट आप डाल सकते हैं कि किस ड्यू डेट में बच्चे सबमिट करें. टाइम भी ऐड कर सकते हैं. तो ये बच्चों के लिए तब तक ओपन रहेगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू असाइन. अब जाके यहाँ पर असाइन कर सकते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स वाले जितने भी क्विज होंगे वो थोड़े नॉर्मल पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने असाइनमेंट वाली वीडियो में शेयर किया था उससे थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि उसमें बच्चों को हैंड इन करना पड़ता था प्रोजेक्ट. यहाँ पर जैसे ही बच्चे सबमिट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको हैंड इन दिखाएगा. ठीक है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो.